وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وعصمنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين۔ جی سورۃ آل عمران ہم نے سٹارٹ کی ہے اور آیت نمبر 9 تک ہم کر چکے ہیں۔ فرسٹ رکوع جو ہے اس کا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور اس میں جو ہے ایک تو آیات محکمات اور متشابہات کے حوالے سے ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ یہ دو طرح کی آیات ہیں، اور جو راسخون فی العلم ہیں وہ متشابہات کی ٹو میں نہیں پڑھتے، وہ بس اس کو یہ سوچ کے لے لیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے سب کچھ، اور وہ محکمات پر رہتے، کیونکہ محکمات وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے عمل سے ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ راسخون فی العلم جو ہیں ان کی کچھ صفات اللہ تعالیٰ نے بتاتے ہوئے ایک تو یہ بتایا کہ وہ سب چیزوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، کہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولو الالباب بھی کہا ہے کہ جو صحیح عقل والے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی ایک دعا بھی ہمیں بتائیے کہ وہ کیا دعا کرتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ بہت خوبصورت دعا ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ دعا یاد کریں اور اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں، اگر آلریڈی ہے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور کسی بھی وقت ہے اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو ہدایت واپس بھی لے سکتے ہیں۔ انسان کا کوئی بھی عمل ایسا ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے، اور ہدایت چھن بھی سکتی ہے، تو اس سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے اور اپنے لیے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کوشش کریں کہ بچوں کو بھی سکھائیں۔ جو علم بڑھتا جاتا ہے نا تو شیطان کے حملے بھی تیز ہوتے جاتے ہیں، اور وہ زیادہ اس طرف انسان کو لگا دیتا ہے کہ دیکھو تم تو بہت بڑی چیز ہو گئے، اور تمہیں تو بہت سمجھ آ گئی، تمہیں تو بہت علم آ گیا، اور کچھ پتہ نہیں چلتا کہ انسان کس طرح سے تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے غلط سوچ اور غلط حرکتیں ایسی ہو جاتی ہیں، تو ہدایت پہ آ کے بھی انسان ہٹ سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے، اور ساتھ آخرت کا احساس ضرور رکھنا چاہیے۔ جو راسخون فی العلم ہیں ان کی نظر آخرت پر بھی ہوتی ہے، اور وہ یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ضرور آخرت میں سب کو اکٹھا کرنے والا ہے، یعنی ان کا اتنا پختہ یقین ہوتا ہے، ظاہر اتنا پختہ یقین ان کا ہوتا ہے تو وہ یہ دعائیں کرتے ہیں نا، اور یہ ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ ان کی نظر آخرت پر ہوتی ہے، کیونکہ ان کو آخرت کا پختہ یقین ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آخرت کا دن آئے گا تو پھر آئے گا۔ آگے سے پڑھ رہی ہوں آیت نمبر 10۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار۔ ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گے، یہ تو جہنم کا ایندھن ہی ہے۔ انا بے شک الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، لن ہرگز نہیں، لا اور لن دونوں نہیں کے لیے آتے ہیں، لن جو ہے وہ زیادہ ذرا شدت سے انکار کے لیے، تغنی جو ہے غین نون اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کچھ لا تغنی کا مطلب آپ اس طریقے سے لیں گے کہ کچھ فائدہ نہیں ہوگا یا کچھ کام نہ آئے گا۔ لا تغنی انہم ان سے، اموالہم مال ان کے، ٹھیک ہے، ولا اور نہ اولادہم اولاد ان کی، نہ مال ان کے نہ اولاد ان کی، من اللہ اللہ سے شیئن کچھ بھی، یعنی کسی طرح سے بھی یہ چیزیں ان کو کام نہ دیں، کام نہ آئیں گی۔
व उलाइका, और यही लोग, हुम वो, वकूद जो है वाव काफ और दाल या पहले पढ़ चुके हैं, वकूद नासु कल हिजारा सूरत अल बकरा में भी ईंधन के लिए आता है वाव काफ और दाल, जिससे आग जलाई जाती है। अन्नार, आग। अच्छा जी, तो चूंकि क़यामत का जिक्र आया तो अब काफिरों का जो अंजाम आखिरत में होना है उसके हवाले से भी बात आ रही है कि उनके कुफर की जो वजूहात, एक उनका माल और एक उनकी औलाद, ये दो बड़े फितरे बेसिकली इस दुनिया में होते हैं ना, माल और औलाद, जिनकी वजह से इंसान जो है वो इतना ज्यादा दुनिया में गर्क हो जाता है और इतना ज्यादा फंस जाता है दुनिया के अंदर कि उसको एहसास ही नहीं रहता कि उसका इस दुनिया में आने का मकसद क्या था, या वो अल्लाह का अब्द है, या उसने अल्लाह की बंदगी करनी है। और इसके अलावा जब हक बात बताई जाती है तो उससे भी इंसान जो है वो इसी वजह से इनकार करता है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे इस चीज को बहुत अच्छी तरह से वाजे कर दिया है कि ये माल या औलाद ये तुम्हें आखिरत में नहीं बचा पाएंगे। दुनिया की जिंदगी का मता तो ये है, यहाँ पे तुम्हें इनसे लगता है कि बहुत फायदा होगा और यहाँ पे तुम इनके पीछे भागते हो और इनके लिए हर नाजायज को भी अपने लिए जायज कर लेते हो, लेकिन आखिरत में तुम्हें अल्लाह से ये नहीं बचा सकेंगे। एक तरह की चैलेंज करके ये बात कही जा रही है कि ये चीजें तुम्हारे लिए दुनिया की जिंदगी का सामान है, तुम्हें हक पहुंचाया गया, तुम्हें हक बात बताई गई और तुम पर हक वाजे हो जाने के बावजूद भी अगर तुमने माल और औलाद की मोहब्बत की वजह से ईमान कबूल नहीं किया तो ये समझ लो कि फिर आखिरत के अजाब से तुम नहीं बच सकोगे, ठीक है? क्योंकि ये दुनिया की जिंदगी जाहिर है चंद रोजा जिंदगी है, असली जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है ना। यहाँ पे अमूमी तौर पे तो सबसे खिताब है, मतलब आप इसमें जो भी काफिर है, मुशरिक है, यहूद है, नसारा है, और साथ इसमें आप वफ्ते नजरान को भी ज़हन में रखें कि उनको भी ये समझाया जा रहा है, क्योंकि वो भी मुख्तलिफ तरीके से समझाने के बावजूद भी वो मान नहीं रहे थे, ठीक है? तो उनको भी साथ साथ ये बताया जा रहा है कि ये तुम इन चीजों की वजह से अपनी शान शौकत और अपना जाहो मर्तबा, अपनी माल औलाद, इसकी वजह से तुम हक से इनकार ना करो, क्योंकि ये चीजें ऐसी है ना कि इंसान इनकी वजह से इताअत से रुक सकता है। इसीलिए इन दोनों चीजों को फितना भी कहा गया। सूरह तगाबुन में आप पढ़ेंगे आगे, फी नफ्स ही ये चीजें दोनों जो हैं ये फितना नहीं है, यानी वैसे तो अल्लाह ताला ने माल को खैर भी कहा है, लेकिन ये चीजें कब फितना बनती हैं या कब इंसान के लिए वबाल बनती हैं, जब इंसान इनके पीछे अपनी आखिरत को भुला देता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने ज़ाहिर है ये दुनिया बनाई है और इसमें जो चीजें रखी हैं, इंसान की अट्रैक्शंस भी उसके अंदर डाली हैं, लेकिन इंसान जब माल की मोहब्बत में इतना मुब्तला हो जाए और इतना ज्यादा उसमें गर्क हो जाए कि उसको ये लगे कि बस ये माल ही है जिसके पीछे मैंने भागना है, और उसके पीछे वो बिल्कुल होश हवास खो बैठता है, क्या जायज है क्या नाजायज है, हराम कमा रहा है या हलाल कमा रहा है, इसकी भी उसको कोई तमीज नहीं रहती, सूद वगैरह खाना लेना इस पे उसको कोई इस चीज की भी उसको कोई तमीज नहीं रहती। बस एक हवस होती है कि और से और माल जमा कर लूं, और से और माल जमा कर लूं, और बस अपने बारे में सोचता है, अपनी आखिरत के बारे में नहीं सोचता, बस अपने ऊपर फोकस होता है या अपनी औलाद के ऊपर फोकस होता है, खर्च भी अपने ऊपर ही करना है, ठीक है? तो वो हक भी नहीं निकालता दूसरों का और फिर हक का भी इनकार करता है। और इसके अलावा औलाद भी आप देखिए फितना बन जाती है इंसान के लिए। वो कैसे कि औलाद के पीछे ही इंसान इतना भागता है, या इतनी उसकी आंखें बंद हो जाती। सबसे पहले तो आप देखें बाज लोग तो औलाद के हुसूल के लिए कितने गलत और शिरकिया कामों की तरफ चले जाते हैं, मज़ारों पर जाना, कब्रों पर जाना, वहां जाके चढ़ावे और मन्नतें मांगना। फिर औलाद हो जाती है तो वो यही समझते हैं उनके इन्हीं की वजह से मिली है, उनकी खुशनुदी के लिए फिर वहां जाके देखें चढ़ाना और चढ़ावे वगैरह ये करना। औलाद बीमार हो गई है तो मुख्तलिफ किस्म के शिरकिया काम, तावीज़ वगैरह, उनके लिए भी उनके पीछे भागते हैं। और इसके अलावा औलाद की ही ख्वाहिशात पूरी करने के लिए इंसान माल की हवस में मुब्तला होता है कि और हर जायज़ नाजायज़
की तमीज और उसके फर्क को खत्म करके कि बस औलाद के लिए माल इकट्ठा करते रहो, और फिर औलाद की तरबियत की तरफ भी ध्यान नहीं देता, बस उनको यानी दुनियादार चूंकि खुद भी होता है तो औलाद की तरबियत भी वैसे ही करता है कि उनको भी बस वो पैसा कमाने की मशीन, उनको भी कोई नई फर्क सिखाया जाता कि क्या हराम है या क्या हलाल है, उनको भी बस दुनिया में गर्क कर देता है, उनको भी दुनिया में मगन कर देता है। और या फिर पीछे से सोच ही होती है कि हमारी औलाद जो है वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी और हम इनके लिए जो है हम इतनी प्रॉपर्टीज बना जाएं, इतना माल इकट्ठा कर जाएं, और जो उनकी ख्वाहिशात होती हैं उनको पूरा करने के लिए भी इंसान ये नहीं सोचता कि मैं जायज तरीके से कमा रहा हूँ या नाजायज तरीके से कमा रहा हूँ। ठीक है ना, उनको कोई दीन की तरबियत दी, मतलब इवन बहुत से मुस्लिम्स भी ऐसे हैं जो कि औलाद की तरबियत की तरफ इतना ध्यान नहीं देते, बस उनको खाना पीना मुहैया कर दिया या उनकी पढ़ाई वगैरह का बंदोबस्त कर दिया, और बस इधर एडमिशन ले लो उधर एडमिशन ले लो, हर वक्त वो एक पढ़ाई की सोच और बस डिग्रियां ले लो, अब ये वाली जॉब कर लो, इससे ज्यादा की सोच ही नहीं होती। बात लोगों है ना, उनके सोच बस यहीं तक होती है कि औलाद के लिए हम बस ये कर दें, उनको ये बना दें, उनकी ऐसी जॉब हो जाए, इससे ज्यादा औलाद की तरबियत का वो कुछ नहीं सोचते कि कुछ इस्लामिक फाउंडेशंस भी उनकी होनी चाहिए, या ये कुरान भी उनको समझा के पढ़ाना है जहां हम उनको दुनिया की तालीम दे रहे हैं, और उनको हराम और हलाल का फर्क जो है वो वाजे करना है। वो जाहिर है ये हराम हलाल का फर्क जब खुद ही वाजे नहीं होगा तो फिर उनको कैसे वाजे करेंगे, ये बात है ना। तो इस तरीके से माल और औलाद इंसान के लिए फितना बन जाता है। वैसे तो अल्लाह ताला की नेमतें हैं, औलाद भी और माल भी, अगर ये नेमतें ना होती तो अंबिया इकराम कभी दुआ ना मांगते, अंबिया इकराम की दुआएं हमें मिलती हैं, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी, और फिर औलाद जो है उसको उन दुआओं में आंखों का नूर भी कहा गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी निकाह को अपनी सुन्नत करार दिया और इसकी तरबियत की है कि मतलब एक जायज तरीके से अपना ये रिश्ता इस्तेमाल करें। तो औलाद भी जो है वो अल्लाह की नेमत है, और औलाद की अगर अच्छी तरबियत की जाए तो वो इंसान के लिए सदका जारिया बनती है, लेकिन तभी जब ये सब किया जाए, जब इंसान उनकी तरफ से गाफिल हो जाता है और उसका सारा फोकस बस माल जमा करने पर होता है, और माल भी वैसे तो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत नेमत है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह ताला की तरफ से दी गई एक खैर है, लेकिन जब उसके पीछे भी इंसान इतना गाफिल हो जाए कि बस माल होना चाहिए चाहे नाजायज तरीके से भी आ रहा है, तो फिर ज़ाहिर है ये चीजें इंसान के लिए फितना बन जाएंगी ना। जिस औलाद की अच्छी तरबियत नहीं की वो कैसे माँ बाप के इस दुनिया से जाने के बाद उनके लिए सदका जारिया बनेगी, वो कैसे उनके लिए दुआ करेगी जब हमने उनको कोई दुआएं सिखाई नहीं, जब हमने उनको कोई उनकी तरबियत ही ऐसी नहीं की कि वो नेक काम करें और उसका जो है वो हमारे लिए दुआएं भी करें, और उसका जो है वो हमारे लिए ये अजर लिखा जाए कि हमने उनकी अच्छी तरबियत की थी, उनको अच्छे मुसलमान बनाया था। तो फी नफ्सी ही ये दोनों चीजें फितना नहीं है जब उनका गलत इस्तेमाल किया जाए या उनका हक अदा ना किया जाए, और उन इंसान इतना गाफिल हो जाए कि उसको ये याद ही ना रहे कि मुझे ये माल और औलाद जो अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें मिली हैं तो मैंने इनको किस तरह से अल्लाह की राह में लगाना है, फिर ये फितना बनती है। ठीक है, और यही चीजें ऐसी हैं जिनके पीछे लग के इंसान हक का चूंकि इनकार करता है, तो अल्लाह ताला ने तमाम इनकार करने वालों को कह दिया कि ये माल और ये औलाद जो है तुम्हें अल्लाह से नहीं बचा सकेंगी किसी भी तरह से आखिरत, क्योंकि आखिरत में तो जाहिर अल्लाह के सामने ही हाजिर होना है। ये दुनिया में इंसान कितना भाग ले, कितना मालो दौलत इकट्ठा कर ले, लेकिन ये दुनिया की जिंदगी है तो बहरल आरजी ही, खत्म तो होनी है। तो जब अल्लाह के सामने हाजिर होगे तो उस वक्त तो ये चीजें तुम्हें नहीं बचा सकेंगी ना अल्लाह ताला की पकड़ से, तो इसलिए अभी अकल कर लो। ठीक है, और ये कहा कि ये लोग आग का ईंधन होंगे, यानी जिस जगह यानी ईंधन जो है जिससे कि आग जलाई जाती, जैसे लकड़ियां हैं, कोयला वगैरह बनती है और उससे फिर वो आग जलती है, तो जहन्नुम का ये जो ईंधन होगा यानी या वो लकड़ियों की जगह पे इन इंसानों को फेंका जाएगा, यानी वो इंसान उन लकड़ियों की जगह बतौर ईंधन आग में जलेंगे और उनकी वजह से वो आग भड़केगी।
सख्त अजाब की यहाँ पे जो है वो वईद दी गई है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर हक वाज़ेह हो गया था, इनको बता दिया गया था, इनको सब समझा दिया गया था। जब इस तरह के अजाब की वईद आती है ना कुरान पाक में, तो उन काफिरों के हवाले से ही आती है जिनके ऊपर, जिन तक हक बात पहुंचा दी गई और वो अपनी जिद और हट धर्मी और अपने तकब्बुर की वजह से उससे इनकार करते हैं। तो इससे तमाम वो काफिर जो है वो मुराद लिए गए हैं। ठीक है कि वो लोग आग का ईंधन होंगे, आग उनसे भड़केगी। ठीक है ये अमूमन मतलब होता ये है ना कि जिसके पास माल और दौलत की कसरत होती है, वो ये समझता है कि शायद मैं तो अल्लाह का मुकर्रब हूँ, इसलिए मुझे इतना ज्यादा मिला हो। ठीक है ना। और ये यानी माल और औलाद की कसरत इंसान को आप कहने कि धोखे में मुब्तला करती है कि मैं तो बहुत बड़ी चीज हूँ, मैं तो अल्लाह का बहुत पसंदीदा हूँ शायद, इसलिए मेरे पे अल्लाह की बड़ी नेमत है। ये बेसिकली शैतान का भी एक समझाया हुआ आप कह लें कि एक इस तरह की सजेशन वो डाल देता है दिल के अंदर, एक वसवसा कि तुम तो बड़े चोजन हो, तुम तो बड़े मुकर्रब हो, देखो अल्लाह ताला ने तुम्हें माल भी बढ़ा दिया है, तुम्हें औलाद भी दी है, इसका मतलब है अल्लाह तुमसे राजी है। तो बस वो ये चीज सोच के ना इंसान के अल्लाह मेरे से राजी है, और वो सब चीजों को अपने ऊपर फिर जायज कर लेता है कि मैं तो जो चाहूं कर लूं, मैं अगर दुनिया में मेरे पे इतना रहम फजल है तो आखिरत में भी बस मैं तो कामयाब ही हूँ। अगर उसको आखिरत की कोई सोच आती भी है ना, तो वो अपने आप को ये कह के सेटिस्फाई कर लेता है। हालांकि माल और औलाद की कसरत इस चीज का सबूत कतन भी नहीं है कि कोई इंसान अल्लाह ताला का मुकर्रब है। ठीक है ना। ये तो अल्लाह ताला ने अपनी मर्जी और हिकमत से तकसीम कर दी है। हाँ, माल और औलाद की कसरत थी और इंसान ने अपना माल भी सही जगह पे लगाया, माल का हक अदा किया और अपनी औलाद की भी सही तरबियत की, उनको भी अच्छा उम्मत मुस्लिमा का एक अच्छा प्रैक्टिसिंग फर्द बनाया, तो फिर तो ठीक है, ये चीजें इंसान के लिए खैर का बायस है। लेकिन वरना बिला वजह इनके ऊपर ये फख्र करना, जिस तरह के अमूमन लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि मेरी तो औलाद है या मेरे बेटे बहुत ज्यादा है या मेरे पास माल बहुत ज्यादा है, तो वो एक अपने अंदर ना एक वो प्राइड सा लेना शुरू कर देते हैं, फख्र महसूस करना शुरू कर देते हैं। औरतें मर्द दोनों के हवाले से बात। तो ये चीज समझने की है कि ना माल और ना औलाद, कोई भी चीज इंसान को के लिए इस चीज की गारंटी नहीं है कि वो अल्लाह का मुकर्रब है और उसकी तो आखिरत में भी जो है वो कोई पकड़ नहीं हो सकती, क्योंकि उसको दुनिया में बहुत अच्छा नवाज दिया कि दुनिया की जिंदगी तो वैसे ही एक आर्जी धोखा है। इसके धोखे में इंसान अगर मुब्तला होकर अपनी आखिरत को भूल जाता है तो वो बहुत बड़ी बेवकूफी में मुब्तला है। और कुफार जो थे उस जमाने के लिहाज से भी अगर आप उसको देख लेना, तो वो भी इन चीजों पे बहुत गरूर करते थे, बहुत तकब्बुर करते थे, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक भी उड़ाते थे कि ये कैसा नबी है, क्योंकि जरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई माल उसबाब तो उस तरह से नहीं था, ना कोई सरदारियां थी, और फिर आपके जरा बेटे भी नहीं थे, जो दो बेटे थे उनकी बहुत अर्ली एज में, यानी बचपन में उनका भी इंतकाल हो गया। तो इस चीज पे वो बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि हमारे पास तो मतलब औलाद भी है, इसके तो कोई नामो निशान भी नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर एक कबायली जिंदगी थी, उनमें बेटों पर बहुत फख्र किया जाता था कि इससे नस्ल चलती है, और इसके अलावा मालो दौलत पर भी वो लोग बहुत तकब्बुर करते थे। आज के दौर में भी ऐसा ही है, ये बुराइयां और ये प्रॉब्लम्स इंसानी जहन के साथ हमेशा से रही हैं, ये साइकोलॉजी रही है लोगों की हर दौर में। आज भी ऐसा है कि बेटे का हसूल जो है उसको भी बहुत काबिले फख्र समझा जाता है, या बेटों का होना और माल और दौलत का होना, और उस जमाने में भी ऐसा ही था। तो वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक भी उड़ाते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों की डेथ हुई तो उस वक्त भी इन्होंने कहा कि इसकी तो जड़ कट गई और इसका तो कोई नाम लेवा ही नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों के लिए ये चीजें बहुत मैटर करती थी कि इसी से नस्ल चलती है और इसी से इंसान का नाम बाकी रहता है। आज देख लें उन सबके नाम जो है वो मिट गए हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो है ज़ाहिर अल्लाह के मुकर्रब वो थे। तो ये चीजें किसी के लिए भी गारंटी नहीं है, औलाद का होना ना होना, माल का होना ना होना, ये कोई ये नहीं कह सकता कि इसकी वजह से शायद कोई अल्लाह का ज्यादा मुकर्रब है, जिसके पास ज्यादा है तो वो अल्लाह का ज्यादा चोजन है, ये अल्लाह ताला के ज्यादा महबूब बंदों में से, ऐसा कुछ नहीं है।
ये सब शैतान के सुझाई हुई बातें हैं जिनके पीछे इंसान लग जाता है और दुनिया में गर्क हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने बहुत क्लियरली यहाँ पे कह दिया है कि इन्नल्लज़ीना कफरू लन तुगनी अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम, ना तो इनके ऊपर कोई फख्र करे कि ये समझे कि वो कामयाब है, और ना इनके होने को अपने लिए कामयाबी की जमानत समझे कि आखिरत में वो कामयाब हो जाएगा। ना दुनिया की जिंदगी में ये किसी की कोई कामयाबी की जमानत दे सकती। बहुत से ऐसे माल और औलाद वाले होते हैं, औलाद भी छोड़ के चली जाती है। बहुत से ऐसे मालदार लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता, माल इस तरीके से खत्म हो जाता है और बिल्कुल मुहताज भी हो जाते हैं। बहुत सी मिसालें ऐसी भी हैं। तो ये चीजें दुनिया की जिंदगी में भी गारंटी नहीं है इंसान की कामयाबी की, और आखिरत में तो बिल्कुल ही नहीं है कि ये चीजें इंसान को अल्लाह की पकड़ से बचा सके। तो हमारे लिए इसमें यही सबक है कि हम भी अपनी सोचों को भी चेक करें और अपने जो जिन चीजों में हम गुमे हुए हैं उनको चेक करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी माल के हसूल के पीछे इतने गर्क हैं कि हम आखिरत को भुला चुके हैं और इस चीज के फर्क को भुला चुके हैं। बतौरे वाइफ्स अगर आप देख लें, अगर हम ये कहें कि जी हम तो अर्न नहीं करते, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम चेक करें कि हमारे हस्बैंड जो अर्निंग कर रहे हैं वो किस हद तक जायज है, किस हद तक हलाल है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी कमाई में कुछ ऐसा हराम दाखिल हो रहा है जिसकी उन्हें भी समझ नहीं है। तो ये हमारे पे भी जिम्मेदारी लागू होती है। हम ये नहीं कह सकते कि हम तो चूंकि याद नहीं करते तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारी ऊपर जिम्मेदारी नहीं आती। नहीं, हमने चेक तो रखना है ना, देखना है। ठीक है, औलाद के हवाले से भी चेक करें कि कहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं, क्या उनकी काम है, क्या उनकी सोचें हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भी दुनिया के पीछे लगे कि चूंकि सब कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ, ये जायज है। ऐसा नहीं है, उनकी तरबियत भी हमारा फर्ज बनता है। और खुद अपने आप को भी देखिए कि ये तो नहीं कि अब बच्चों के पीछे लग के अब उनके पीछे चलो अब बच्चों को ये पिक एंड ड्रॉप करना है या उनको संभालना है, अभी इनको ये करना है तो खैर है। आप अक्सर होती हैं समझते हैं कि उनके ऊपर नमाज भी जो है उसकी भी माफी हो जाती है अगर वो नमाजें ना पढ़ी। हालांकि नमाज तो बेसिक फर्ज है, किसी के ऊपर भी उसकी माफी नहीं। तो मैं मतलब ज़ाहिर औरतों के हवाले से मैं इस तरह की एक मिसाल दे के समझा रही हूँ। तो बहरहाल ये हमने अपने आप को चेक करना है कि इनके पीछे क्या हम भी तो इतना गर्क नहीं हो गए कि अपनी आखिरत को भुला बैठे। तो अल्लाह ताला ने तो साफ कह दिया कि ये चीजें आखिरत में काम नहीं आएंगी। ठीक है, अमूमन इंसान ये सोच के पढ़ लेते हैं कि ये तो काफरों की बात हो रही है ना, हम तो कुफर नहीं करते। तो कुफर सिर्फ जुबानी कुफर नहीं होता, अमली कुफर भी होता है। तो अगर हम अपनी जिंदगियों में कहीं पे अमली कुफर भी कर रहे हैं ना, तो उस पर भी हमें अपने आप को करेक्ट करने की जरूरत है। कदबी आली फिरऔन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कज़्ज़बू बिआयातिना फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम वल्लाहु शदीदुल इक़ाब। जैसा आले फिरौन का हाल हुआ और उनका जो उनसे पहले थे, उन्होंने हमारी आयात को झुटलाया, फिर अल्लाह ताला ने भी उन्हें उनके गुनाहों पर पकड़ लिया। अल्लाह ताला सख्त अज़ाब देने वाला है। क जो है वो मानंद के लिए आता है, यानी उसके जैसा, और दअब जो है ये दाल हमजा बाईस का रूप वर्ड है। ये कोई आदत या हालत इस सेंस में आता है, यानी वैसे तो ये कोई मुसलसल चलने के लिए आता है ये वर्ड जो है, लेकिन जो एक इंसान की आदत जो उसको जो मुसलसल करता रहता है या जो उसकी हालत होती है उसके लिए भी आता है। तो कदब भी आले फिरौन, मानंद हालत आले फिरौन की। फिरौन और उसकी जो भी आल में उसकी औलाद और उसका लाउ लश्कर सब जो उसके फॉलोअर्स थे सब आ जाते हैं। वल्लज़ीना, और वो लोग, मिन क़ब्लिहिम, जो उनसे पहले थे। ठीक है, उनसे पहले भी जो नाफरमान लोग थे सबके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं। कज़बू, उन्होंने झुटलाया, उन्होंने तकजीब की। ठीक है, कज़बा झूठ बोलना होता है, और अगर तशदीद के साथ आ जाए कज़बू तो किसी दूसरे को झुटलाने के मायने में। बिआयातिना, हमारी आयात को, बाज़बी यहाँ पे को के मायने में है। हमारी आयात को यानी उन्होंने झुटलाया, या आप ये कह लें कि जिन्होंने तकजीब की हमारी आयात की, उसमें की के मायनों में भी आ जाता है, उन्होंने लिखना हम के लिए आता है। फ़अख़ज़हुमुल्लाहु, तो पकड़ लिया उनको। अख़ज़ा होता है ना किसी बात को अख़ज़ कर लेना, उसका मफ़हूम अख़ज़ कर लेना। तो पकड़ लिया हम उनको, अल्लाहु, अल्लाह ताला ने,
बिजुनूबिहिम बवजा उनके गुनाहों के, जन की जमा जुनूब, ठीक है, साल नून बाही इसका रूट वर्ड है। बाज़ भी बवजा या साथ के मायनों में कि उनके गुनाहों के साथ उनको पकड़ लिया या उनके गुनाहों की वजह से उनको पकड़ लिया। वल्लाहु, और अल्लाह ताला शदीदुल इक़ाब, शदीद है। इक़ाब कहते हैं सजा को। अकब इसका रूट वर्ड है, आइन काफ और बा। अकब पीछे को कहते हैं, उर्दू में भी हम यूज करते हैं कि मकान के अकब में एक कोई दरख्त था या मैदान था। तो बेसिकली अकब या इक़ाब जो है, अकब से यानी इसका मतलब होता है वो सजा जो किसी गुनाह के या बुरे अमल के पीछे आती है, यानी जैसे जुर्म साबित हो जाने के बाद जो उसको सजा मिलती है, किसी जुर्म के पीछे आने वाली सजा। तो अल्लाह ताला ये कह रही है कि जिससे पहले बात हुई थी ना कि ये सब लोग आग का ईंधन है। कद भी आले फिरौन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, मानंद उन सब लोगों की हालत के जो कि आले फिरौन और या उनसे पहले के इनकारी थे। यानी फिरौन और उसका लाओ लश्कर, उसने भी जिस तरीके से इनकार किया, आपको पता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह ताला ने भेजे, बहुत सी निशानियां भेजी, मुअज़्ज़ात दिखाए, बहुत अरसे तक उनको समझाते रहे, लेकिन वो नहीं माने। तो अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में भी गर्क किया और आखिरत में भी ज़ाहिर है उनके लिए अजाब ही है। और सिर्फ वही नहीं, उससे पहले भी जिन ने झुटलाया, चाहे वो कौम नूह थी, चाहे वो कौम आद, कौम समूद या हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम, सबके ऊपर अल्लाह ताला ने इस दुनिया में अजाब भेज के उनको गर्क कर दिया और आखिरत में भी उनके लिए शदीद अजाब की वईद अल्लाह ताला बता रहे हैं। तो और ये क्यों है? फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, कि अल्लाह ताला ने उन सब की पकड़ की थी उनके गुनाहों की वजह से। कज़्ज़बू बि आयातिना, उन्होंने हमारी आयात को झुटलाया था। ये इनका बहुत बड़ा एक गुनाह था कि उन्होंने हमारी आयात को झुटलाया था। फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, यानी वो सब गुनाहगार थे, वो हक का इनकार करते थे सब कुछ वाज़ेह हो जाने के बावजूद। ये तो ऐसी कौमें थी जिनको दुनिया में इतने मुअज़्ज़ात दिखाए थे उनके अंबिया ने, उसके बावजूद। और जिस हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी समूद, उसने तो खुद मुतालबा भी किया था कि हमें कोई दिखाया जाए मुअज़्ज़ा, और फिर वो ऊँटनी निकली थी पहाड़ से, और उसके बावजूद भी उन्होंने इनकार किया। तो ये तो ऐसी कौमें थी कि आंखों देखे मुअज़्ज़ात का भी इनकार करती थी और गुनाहों में पड़े रहती थे। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे वाज़ेह कर दिया कि जिस तरह उन कौमों की उनके गुनाहों पर पकड़ हुई थी और उनके लिए अगली दुनिया में भी अजाब ही है, अगली जिंदगी में भी, तो ऐसा ही हर उस काफिर के साथ होगा जिसको सब कुछ वाज़ेह कर दिया गया, सब कुछ बता दिया गया, उसके बावजूद उसने इनकार किया, तो उसकी भी उसके गुनाहों पर पकड़ होगी। अब इसमें भी ये समझ लें कि हम ये कह के इस आयत के ऊपर से नहीं गुजर सकते कि ये तो पुरानी कौमों की बात हो रही है ना, तो ये तो उनके हवाले से बात हो रही है, तो इसलिए शायद उन्हीं की गुनाहों पे पकड़ होगी। ऐसी बात नहीं है। अगर उनकी पकड़ हुई, जो अल्लाह ताला ने कहा है फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, उनकी पकड़ उनके गुनाहों की वजह से हुई, तो हम कैसे ये समझ लें कि हमारी पकड़ नहीं होगी गुनाहों के ऊपर, कि बस वही कौमें बुरी थी इसलिए वो अजाब का शिकार हुई, हम जो मर्जी कर लें हमें हमारी पकड़ नहीं होगी। तो ऐसा तो नहीं है। जो भी गुनाह करता है, जो भी जानबूझ के इनकार करता है अल्लाह के अहकामात का या अल्लाह ताला की बताई हुई हुदूद को जो क्रॉस करता है जानते बूझते, तो पकड़ तो उसकी भी होगी, आज भी होगी, आने वाले वक्तों में भी होगी। ये तो अल्लाह ताला का एक असूल। और आज आप देख रहे मुसलमानों की भी पकड़ हो रही है हर जगह पे, जहां जहां है, क्योंकि जानते बूझते इतना अमली इनकार हो रहा है। मुंह से तो सब पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, सब कहते हैं हाँ जी हम अल्लाह को मानने वाले, लेकिन अमली कुफर कितना ज्यादा है आप देख लें। और कौन सी ऐसी बुराई है जो आज हमारे माशरे में भी नहीं है। तो आप देख लें अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ तो आती है ना, और आई जा रही है मुसलसल मुख्तलिफ सूरतों में। कभी किसी तरह, कभी कोई आसमानी आफत है तो कभी कोई जमीनी आफत है, कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला की पकड़ होती है। फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, ये अल्लाह ताला हमें क्यों बता रहे हैं कि उनकी पकड़ उनके गुनाहों की वजह से हुई थी, तो तुम्हारी भी हो सकती है। हम में से कोई ये ना समझे कि बस हमने तो चूंकि हम मुसलमान घराने में आंख खोली है, कलमा पड़ा हुआ है, तो बस अब तो हम नबी की उम्मती हैं, तो अब तो सब कुछ करना जायज है। क्योंकि बहुत से मुसलमानों को ये कॉन्सेप्ट है हम तो नबी की उम्मती हैं जी, हम तो बख्शे बख्शाए हैं। तो
یا تو ہم نے تو فلاں پیر کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے وہ ہمیں بچا لے گا. اس طرح کے بہت سے فالس کانسیپٹس لے کے آج مسلمان بھی اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزار رہے ہیں, جو بھی کرتے ہیں سب کچھ اپنے اوپر حلال اور سمجھتے ہیں کہ شاید جہنم میں تو صرف یہ نہیں جانا ہے جو یہود و نصارہ یا مشرکین, ہم تو ہیں ہی جنتی. ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, اور نہ اس قسم کی خوش فہمی لے کے اپنے اوپر سب کچھ جائز کرنے کی ضرورت ہے. جو بھی گناہ کرے گا, جو بھی انکار کرے گا, اس کے باوجود کہ اس کے اوپر حق واضح ہے, تو وہ اللہ کی پکڑ کا شکار ہوگا ہی ہوگا. یہ یاد رکھنے کی بات, ٹھیک ہے. اللہ شدید العقاب, اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اکثر جگہوں پہ اپنے غفور و رحیم ہونے کا, اپنے رحمان ہونے کا, رحیم ہونے کا, عفو کریم ہونے کا ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ساری وہ صفات جہاں پہ آتی ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب اور شدید العذاب اس کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شدید پکڑ کرنے والے ہیں, شدید سزا دینے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے شدید عذاب ہوگا. یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں, کیونکہ شیطان جو ہے نا ایک ساتھ یہ چیز بھی سجھا دیتا ہے کہ کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کا رحمان رحیم ہے, یہ کر لو, گناہ کچھ نہیں ہوتا, تمہاری معافی ہو جائے گی. یہ کہہ کہ وہ انسان کو اس طرف لگایا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تو ساتھ بتاتے ہیں کہ میں شدید العقاب بھی ہوں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ گناہ کر کے اور لوگوں کا حق مار کے اور ان پہ ظلم کر کے میری پکڑ سے کوئی بچ جائے گا, تو ایسا تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی رحمان اور رحیم اور غفور الرحیم یا عفو کریم ہونے کی صفات بتائی ہیں, وہاں پہ اپنی یہ صفات بھی بتائی ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے منصف ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس اپنی رحمانیت ہی دکھائیں اور پکڑ نہ کریں کافروں کی؟ تو ایسی بات نہیں ہے, گناہوں کے اوپر پکڑ بھی ہوتی ہے, اور اسی لیے ہر وقت استغفار کرتے رہنے کی ضرورت ہے. اور یہ زندگی جو گزارنی ہے بہت زیادہ الرٹ ہو کے گزارنے کی ضرورت ہے. ہم ایسے آنکھیں بند کر کے نہیں گزار سکتے کہ جو بھی جیسی بھی زندگی گزر رہی ہے اور جس طریقے سے بس ہمیں پیسہ چاہیے اور وہ ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے, چاہے جائز یا ناجائز طریقے سے. اسی لیے جو میں نے ابھی کہا نا کہ بیوی ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے کچھ فرائض آتے ہیں, اس میں بھی ہم نے یہ چیک کرنا, یہ نہیں دیکھنا کہ بس شوہر جو ہے وہ ہماری ضروریات پیسہ کما کے لا کے پورا کر رہا ہے تو ٹھیک ہے ہم اس سے آنکھیں بند کر لیں. نہیں, جو ہمیں یہ بھی دیکھنا کہ کہاں سے آ رہا ہے, جائز ہے یا ناجائز ہے. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد. کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیا جاؤ گے, اور وہ برا ٹھکانہ ہے. قل کہہ دیجئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے, للذین لیے ان لوگوں کے, لام زیر لیے کے لیے, کفروا جنہوں نے کفر کیا, س جو ہے عنقریب کے لیے, تغلبون تا جو ہے وہ تم کے لیے آ رہا ہے, اور غین لام اور با روٹ ورڈ ہے, غلبہ مغلوب ہونا اردو کا بھی ورڈ ہے, ٹھیک ہے. واو نون پلورل کے لیے آ رہا ہے, اور تغلبون پیش ہے اور ساری حرکات اوپر ہیں, یعنی نیچے کوئی زیر وغیرہ نہیں آ رہی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو عنقریب تم مغلوب کیے جاؤ گے, اس طریقے سے اس کا ترجمہ ہوگے نہیں, کیے جاؤ گے. ستغلبون عنقریب تم مغلوب کیے جاؤ گے. اور تحشرون یہ بھی اسی طرح سے ہوگا, تم اکٹھے کیے جاؤ گے. ہا شین اور را, حشر میدان حشر, یوم محشر ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں, تو اس کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے اکٹھا کیا جانا. تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے, الا طرف جہنم جہنم کے, جیم ہا میم, وبئس اور کتنا برا ہے, المہاد ٹھکانہ. مہاد جو ہے وہ مہد سے ہے, میم ہا اور دال, جس کا مطلب گود یا بچھونا, بچے کا جس طرح مطلب گود میں بچہ بیٹھتا ہے, یا جس طرح کوئی بھی بچے کا بستر جو ہوتا ہے اس کے لیے. یہ جہنم کا روٹ پر جو ہے نا یہ یہی ہے, جیم حامیم نہیں ہے. اچھا, اوکے, تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو کہہ دیجئے جنہوں نے کفر کیا, یعنی خطاب تو سب قسم کے کافروں سے ہی ہے, لیکن
बिलखुसूस जो है ना यहाँ पे जो यहूद थे मदीना के, वो इससे मुखातिब है, ठीक है ना। और कह अल्लाह ताला ये रहे हैं कि अनकरीब तुम मगलूब किए जाओगे और फिर तुम जहन्नम में इकट्ठे किए जाओगे, जो कि बहुत बुरा ठिकाना है। असल में हुआ ये था कि जब जंग बदर हो गई थी ना, तो मुसलमानों को ज़ाहिर उसमें बहुत अजीम फतह अता हुई थी। अभी अगली आयत उसी के हवाले से है। तो उससे मुतासिर जब ज़ाहिर बहुत इन पे असर तो पड़ा, तो एक अब्दुल्ला बिन उबई, जिसको रईसुल मुनाफिकीन कहा जाता है, नाम आपने सुना ही होगा, बहुत बड़ा एक मुनाफिक था। तो इसके साथ असल में ये मामला था कि इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना हिजरत से पहले ना, इसको ये लोग अपना सरदार बना रहे थे और इसके लिए ताज भी तैयार कर दिया गया था कि इसकी ताजपोशी वगैरह होनी थी। लेकिन अब जब बीच में ये सारा इंसिडेंट हो गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए वहां पे, तो वो सारा इसका मामला जो था वो ठप हो गया। तो इस वजह से ना इसके दिल में बहुत ज्यादा एक बोझ था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मुसलमानों के लिए, और इसकी हरकतें भी ऐसी होती थी जड़ें काटने वाली। लेकिन अब जब ये हुआ कि एकदम से ज़ाहिर आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंसार जो है वो, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस उनका हुआ, और फिर ये जंग बदर के बाद भी बहुत अच्छा एक असर पड़ा। तो इसलिए फर्जी तौर पर इसने भी इस्लाम कबूल कर लिया। अब उसके साथ साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लाम कबूल कर लिया, अब उसके साथ साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना में रहने वाले जो यहूद, बिलखुसूस जो बनु कैनुका थे ना, उनको भी कहा कि तुम भी इस्लाम कबूल कर लो तो तुम आफियत में रहोगे। ये बेसिकली बनु कैनुका, बनु नदीर और बनु कुरैजा, ये 3 यहूद कबाइल थे। तो बनु कैनुका जो है वो अंदर ही था मदीना में, बाकी लोग बाहर थे। तो इनको, ये जो बनु कैनुका था, इनको भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ज़ाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबको ही इस्लाम की तालीमात देते थे, और तो कहा कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। तो इन्होंने आगे से ना बहुत मजाक उड़ाया था इन यहूद ने, और इन्होंने ये कहा था कि ये तो मक्का के काफिर तो बड़े जाहिल थे, उनको तो कोई जंग के तरीके नहीं आते थे, वो फनूने जंग से नाशना थे, इस वजह से वो तुम्हारे हाथों पिट गए। हमसे अगर तुम्हारा मुकाबला हुआ तो हम तुम लोगों को समझ आ जाएगी, क्योंकि ये अपने ऊपर बहुत ज़ाहिर है इनको तकब्बुर था, मालदार भी थे, और ये समझते थे कि हम तो बहुत ज्यादा जो जंगी स्ट्रेटजीज हैं हमें वो बहुत अच्छी आती हैं। तो इन्होंने ये कहा कि हम तुम्हें बता देंगे, या फिर तुम देखना जब हमारे साथ तुम्हारा मुकाबला होगा तो हम तुम लोगों को कैसे मार भगाते हैं। उस वक्त फिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई कि आप इनको कह दीजिए कि तुम सब मगलूब हो जाओगे और तुम आखिरत में भी जहन्नम की तरफ इकट्ठे किए जाओगे। तो इसमें इनका आखिरत में मगलूब होना भी और फिर जहन्नम की तरफ इकट्ठा किया जाना वो भी इससे मुराद है। और दुनिया के हवाले से भी ये एक तरह की अल्लाह ताला की तरफ से मतलब एक कोई पेशीन गोई थी, जो कि बाद में बिल्कुल हर्फ बहर्फ सही पूरी हुई। और आप देखते हैं कि तारीख आप पढ़ें तो आपको पता चलता है कि सबसे पहले ये जो बनु कैनुका था, इसको पूरे के पूरे इसके कबीले को जो है जिला वतन किया गया था, ठीक है। खैबर गए थे फिर ये लोग, फिर जो बनु नदीर और जो दूसरे थे बनु कुरैजा वगैरह, उनकी भी बारी आई, कत्ल किए गए, लोंडी गुलाम बनाए गए, और क्योंकि इन्होंने अपने मायदे भी तोड़े और ये ज़ाहिर बहुत इन्होंने नुकसान दिया, तो इनका भी फिर यही मामला हुआ था। और फिर ये भी उधर खैबर में ही चले गए थे, ठीक है। तो बाद में फिर हजरत उमर फारूक के ज़माने में इनको वहां से भी निकाल दिया गया था। बहरहाल तो ये समझने की बात है कि अल्लाह ताला ने ये जो पेशीन गोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बानी इनके लिए की गई थी, वो ऐसे टाइम पे की गई थी। अगर आप उस वक्त का जो माहौल था वो देखें कि मुसलमान जो हैं अभी तो बहुत थोड़ी तादाद में थे, बहुत यानी एक नई अभी एक इस्लामी रियासत की बुनियाद हो रही थी, और हर तरफ खौफ और हरास भी था, क्योंकि हर तरफ से हमले का खदशा रहता था। कमजोर थे, अकलियत में थे, और सारे मुश्रिकीन, यहूद, नसारा, मुनाफिकीन सब के सब इकट्ठे मिलके इनके अगेंस्ट थे, और सबकी कोशिश ये थी कि इनको हटा दिया जाए और इनको खत्म कर दिया जाए। और
कोई ऐसी बज़ाहिर सूरत हाल नजर नहीं आती थी कि ये इतनी छोटी सी जमात जो है अल्लाह ताला इसको इस तरीके से गालिब करेंगे और इस तरीके से इसको कामयाबी देंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने वाकई मुसलमानों की इस तरीके से फिर मदद की और फिर ऐसा हालात ने पलटा खाया कि आहिस्ता आहिस्ता ये सब जो थे ये मात खाते गए और फिर इस्लाम जो है इस तरीके से फैल गया पूरे अरब में भी, फिर आस्ता आस्ता उसके बाद भी। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये बात बता दी कि तुम, क्योंकि जब इस तरीके की ये बातें करते थे ना तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के हौसला बढ़ाने के लिए, उनको तसल्ली देने के लिए इस तरह की आयात आती थी और इनको जवाब देने के लिए भी। ठीक है, तो बहरहाल इसमें साथ जो वक्त नजरान है उनको भी समझाया जा रहा है कि वो भी नहीं मान रहे थे, वो भी अपनी बात पे अड़े हुए थे, तो उनको भी ये बताया जा रहा है कि तुम भी मगलूब हो जाएगा। और वाकई बाद में जो नसारा हैं वो भी किस तरीके से मगलूब हुए, जब बाहर तक भी ये यानी खत्ता अरब से बाहर भी इस्लाम की जब हुकूमत गई तो ये लोग भी सब मगलूब हुए। तो ये अल्लाह ताला ने जो उस वक्त बात इनको बताई थी, जिस पे उस वक्त उन्होंने मजाक ही उड़ाया था, लेकिन अल्लाह ताला ने तसल्ली दी थी, वो बात बाद में बिल्कुल सही साबित हुई। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इससे मुराद उनका आखिरत में मगलूब करके जहन्नुम की तरफ ले जाया जाना भी मुराद है। और उसमें साथ उनको ये भी बता दी गई कि ये कितना बुरा ठिकाना है। जिस तरह यानी मिहाद का वर्ड यूज किया गया, जिसके अंदर जो बच्चा लेटता है, जो उसका बिस्तर कह लें या गोद, जिसके अंदर वो पूरी तरह से ऐसे कवर्ड होता है, तो यहाँ पे उनके जहन्नुम को उनका ठिकाना बताया गया कि उसके अंदर इस तरीके से फेंक दिए जाएंगे तो वो उनका ठिकाना। आगे देखिए, क़द कान लकुम आयतुन फी फ़िअतैन इल्तक़ता फ़िअतुन तुक़ातिलु फी सबीलिल्लाहि व उख़रा काफ़िरतुन यरौनहुम मिस्लैहिम रअयल ऐन वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिहि मन यशा इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार। यकीनन तुम्हारे लिए इबरत की निशानी है उन दो जमातों में जो आपस में मिल गई थी, या आपस में जिनकी यानी जंग हुई थी। एक जमात तो अल्लाह ताला की राह में लड़ रही थी और दूसरा गिरोह काफरों का था। वो उन्हें अपनी आंखों से अपने से दुगना देखते थे और अल्लाह ताला जिसे चाहे अपनी मदद से मजबूत करता है। यकीनन उसमें आंखों वालों के लिए बड़ी इबरत है। कद यकीनन तहकीक काना है लकुम लिए तुम्हारे आयतुन एक निशानी। यहाँ पे वाहिद की बात है, सिंगुलर की आयतुन एक निशानी। आयत का मतलब निशानी होता है। फी फ़िअतैन फी में के लिए आता है और फ़िअतैन जो है ये फा या हमजा, फ़िअतुन जो है ये बेसिकली ग्रुप या ग्रोह के लिए आता है। बेसिकली इसका जो लुग़वी मतलब है लौटना के मायनों में है। ठीक है, ग्रुप के लोग भी जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं ना, कहीं भी चले जाएं फिर वापस आके अपने ग्रुप के साथ मिल जाते हैं। ठीक है, तो वापस लौट आते हैं, तो बेसिकली ये लौटने के मायने। तो फ़िअतैन जो है ये बेसिकली तस्नीय का सीगा है, दुगल का, यानी दो ग्रोहों की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यकीनन तुम्हारे लिए एक निशानी है दो ग्रोहों में। ठीक, इल्तक़ता का मतलब है कि जो बाहम आपस में मिल गई थी, यानी एक दूसरे के बाहम मुकाबिल हो गए थे। ये इल्का का वर्ड होता है ना, लाम काफ या वाला। मुलाकात का वर्ड भी इसी से ही है। ठीक है, यानी जिनकी आपस में मुलाकात हुई, कहने का मतलब है कि जो जंग में एक दूसरे के मुकाबिल आ गए थे, आमने सामने आ गए थे। इल्तक़ता जो ये एहतमाम से सामना करना, बेसिकली बाद में जाके इसका मतलब इस तरह से हो जाता है। लाम काफ या मुलाकात वाला वर्ड वही रूट वर्ड है। और इल्तक़ता दोनों के यानी तस्नीय का सीगा कि वो दोनों आपस में एक दूसरे के मुकाबिल आ गई थी। फ़िअतुन एक गिरोह, तुक़ातिलु वो लड़ रहा था। इसमें ता जो है ना तुक़ातिलु की ये मुन्नस की ता है, फ़िअतुन मुन्नस है। अरबी में जहाँ पे भी ये गोल ता आती है ना वो ये मुन्नस के लिए होती है। तो कातिलु वो लड़ रहा था फी सबीलिल्लाही, फी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह के रास्ते में एक ग्रोह लड़ रहा था, यानी जो मुसलमानों का ग्रोह था। व उखरा और दूसरा काफिरतुन काफिर था, दूसरा ग्रोह काफिर ग्रोह था। ठीक है, यरौनहुम वो देख रहे थे उनको, या जो है वो भी वो के मायनों में
और फिर रूट वर्ड जो है रा हमजा या, और हम भी उनको के मायने में, वो उनको देख रहे थे। अब कौन किनको देख रहे थे ये भी मैं आपको तफसील में बता देती हूँ। तो यरऊ वो देख रहे थे, यरऊना वो देख रहे थे, हम उनको, मिसलैहिम अपने से मिसल, या ये बेसिकली मिसलैन वर्ड था, यानी मिसल का तस्निया आप कह लें, यानी मिसल यानी से दुगना आप कह लें, ठीक है, यानी अपने से दुगना, मिसलैहिम उनसे दुगना, ठीक है, मिसलैन दुगना के मायनों में, और हिम उनसे या अपने से। अभी मैं इसको तफसील में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हम या उनसे कौन मुराद है। रअयल ऐन जो है, रअया का वर्ड वही है देखना, रुयत का वर्ड रा हमजा या, और इसको रअया पढ़ना आपने झटके से, हमजा के ऊपर जैसा मैंने, रअयल ऐन, ऐन जो है वो आंख के लिए आता है, तो रअयल ऐन आंख से देखने में सॉरी, वल्लाहु और अल्लाह ताला युअय्यिदु वो तायीद करता है, हमजा या दाल या लिफ या दाल, तायीद करता है अल्लाह ताला की तरफ से, मदद के मायनों में आप कह लें या कुव्वत देने के मायनों में, ठीक है। युअय्यिदु वो या जो है शुरू में आता है वाला वो के मायनों में, वो तायीद करता है बिनसरिही साथ अपनी मदद के, नुसरत मदद के लिए आता है, ठीक है। अल्लाह ताला अपनी मदद के साथ तायीद करता है किसकी, मैयशाउ जिसको वो चाहता है। इन्ना बेशक फी जालिका इसमें, फी ने के लिए आता है, जालिका इसम इशारा है इसके लिए, ल इबरतन अलबत्ता इबरत है, ऐन बा और रा, इबरत जो है बेसिकली अबर ऐन बा रा अबूर करना होता है ना, मतलब पार कर लेना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। तो इबरत भी यानी एक से दूसरी हकीकत की तरफ इंसान चला जाता है, उसको पता चल जाता है कि अच्छा ये इसकी हकीकत है। बहरहाल इबरत का वर्ड हम उर्दू में यूज करती हैं। ल इबरतन अलबत्ता इबरत है, लाम जबर अब अलबत्ता के लिए, ली उलिल अबसार लाम से लिए, उली वाले के लिए, और अबसार बसीरत से है, यानी अहले नजर के लिए या बसीरत वालों के लिए अलबत्ता इसमें इबरत है। अच्छा जी, अब चूंकि बात हो रही थी मगलूब किए जाने की, तो अल्लाह ताला ने फिर वो वाकया भी जो हज़रत बदर का था वो यहाँ पे पूरी तरह से बयान कर दिया है। रिसायत में भी मुखातिब सब तरह के काफिर हैं कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे बेसिकली जो बदर के मैदान जंग था उसका नक्शा पेश फरमाया कि उसकी मिसाल अच्छी तरह से सब लोग समझ लें कि उसमें मुसलमानों की तादाद कितनी कम थी और जो काफिर थे उनकी तादाद कितनी ज्यादा थी, लेकिन वो सारे काफिर जो हैं वो मगलूब हुए, ठीक है। यानी इस बात को सुन के या पढ़ के कोई उसको मजाक में ना उड़ा दे या ये ना समझ ले कि ये कैसे हो सकता है कि ये बात तो पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने मिसाल दे दी, क्योंकि पीछे ज़रा एक पेशीन गोई की बात थी, तो अल्लाह ताला ने उस वाक़े को भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, और जिसमें दो ग्रोह बताए गए हैं, इसमें एक ग्रोह काफिर और दूसरा मुसलमानों का ग्रोह मुराद है, फिअतैन। और अल्लाह ताला ने एक ग्रोह को तो काफिर ग्रोह कहा है, लेकिन दूसरे को कहा है तो कातिलु फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते में लड़ रहा था। ये नहीं कहा कि दूसरा मुसलमानों का ग्रोह था। क्यों? क्योंकि ये मुसलमान का टाइटल कोई तफाकुर के लिए तो है नहीं, कोई फख्र करने के लिए, ठीक है ना। ये कि मतलब इस तरीके का नाम लेके कोई समझ ले कि बस ये तो बड़ा एक मुझे सर्टिफिकेट मिल गया या टाइटल मिल गया। और दूसरी बात ये भी है कि महज ये टाइटल होना काफी नहीं है जब तक कि फी सबीलिल्लाह कुछ अमल नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखें जो एम्फसाइज किया गया ना, वो तुकातिलु फी सबीलिल्लाह पे किया गया कि वो अल्लाह की राह के लिए लड़ रहे थे। दो ग्रोह थे, एक ग्रोह काफरों का था जो कि जाहिर है अपनी दुनियावी मकासद के लिए लड़ रहे थे, जबकि दूसरा ग्रोह जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की राह में लड़ रहा था। यानी ये चीज इतनी ज्यादा अहम है कि अल्लाह ताला ने बकायदा उसको फी सबीलिल्लाह के किस तरीके से एक्सप्लेन किया। ये नहीं कहा अल्लाह ताला ने, कहा ना उखरा काफिरतुन, तो एक यानी दूसरा जो है वो काफिर था, तो एक मुसलमान था और एक काफिर था, इस तरीके से भी कहा जा सकता। लेकिन ये नहीं अल्लाह ताला ने कहा, यहाँ पे फी सबीलिल्लाह कह के बात की गई है, यानी इस चीज को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है। तो
तो इस चीज को भी समझने की जरूरत है। जो अल्फाज होते हैं ना उनकी भी गहराई में जाना चाहिए। देखिए क्यों ये चीज यहाँ पे बयान की, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, तो ये अल्लाह ताला ने यहाँ पे बता दिया कि वो जब दो ग्रोह आपस में आए, आमने सामने हुए थे, एक उसमें से अल्लाह की राह में लड़ा था, दूसरा जो है वो काफिर ग्रोह था। और उसमें हुआ क्या कि ये जो ये बात है ना यहाँ पे कि यरौनहुम मिस्लैहिम रअयल ऐन, वो उनको अपने से दुगना देख रहे थे। अब इस जुमले की मुख्तलिफ तफसीर की गई है। एक तो ये कि जो मुसलमान हैं उनको वो अपने से दुगने नजर आ रहे थे, काफिर जो हैं। दूसरा ये कि काफिरों का जो ग्रोह है उनको मुसलमानों का ग्रोह अपने से दुगना नजर आ रहा था। ठीक है। यानी और एक ये भी कि काफिरों को अपनी तादाद बहुत ज्यादा नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी वो शिकस्त खा गए। बहरहाल जिस हवाले से भी आप इसकी देख लें, असल में थोड़ी सी आप इसकी डिटेल ये समझ लेना कि इस मार्के में जो गज़वा बदर का मार्का था, अब इसकी जो बैकग्राउंड या डिटेल्स वगैरह है वो तो ज़रा इधर तफसीर में इतना टाइम नहीं कि मैं वो आपको बताऊं। तजलियात नबूवत में भी है, इनको आप गूगल कर लें, आपको काफ़ी डिटेल्स मिल जाएंगी कि क्यों ये वाक़या हुआ था। बहरहाल अभी मुसलमान, चूंकि जो मुसलमान रियासत जो है वो तो अभी बहुत ही अपनी इन्फेंसी में थी, मतलब बहुत ही अभी तो इब्तदाई स्टेज थी। और अच्छा सॉरी, मुझे ना बीच में मैसेज आ रहा है कि योर कॉल में एंड इन 10 मिनट्स, तो फिर मैं दोबारा ज्वाइन करूंगी, तो आप परेशान ना होना, ठीक है। अच्छा, तो ये इतनी, यानी अभी तो मुसलमानों की तादाद बहुत छोटी थी और ये मक्का से जो है पूरा ये काफरों का बहुत बड़ा ग्रोह निकल आया था मुसलमानों पे हमले के लिए। और इनकी तादाद जो है वो 1000 के करीब थी काफरों की, और इनके पास दायरा जो जंगी साजो सामान था वो भी बहुत ज्यादा था। इनके पास 100 घोड़े थे, 700 ऊंट थे इनके पास, और इनके पास बेशुमार तलवारें, और जो जिरें थी वो भी बहुत जिरें, वो जो आर्मर, वो जो लोहे का लिबास होता है सिपाही पहनते हैं अपने आप को बचाने के लिए, वो भी उनके पास बहुत ज्यादा थे। ठीक है। उसके मुकाबले में मुसलमान चूंकि अभी बहुत थोड़ी तादाद में थे, तो मुसलमानों की तादाद जो है वो 313 मुसलमान थे। ठीक है। 2 घोड़े थे, 70 ऊंट थे, सिर्फ 8 तलवारें थी और 6 जिरें थी। ठीक है। 2 घोड़े, 70 ऊंट, 8 तलवारें और 6 जिरें मुसलमानों के पास थी, और टोटल तादाद जो है वो 313 थी। तो आप जरा कंपेयर करें ना, उधर 100 घोड़े, इधर सिर्फ 2 घोड़े हैं, उधर 700 ऊंट है, यहाँ पे सिर्फ जो है वो 70 ऊंट है, और वहां पे बेशुमार तलवारें और बेशुमार जिरें, यहाँ पे सिर्फ 8 तलवारें और 6 जिरें। यानी कोई कंपैरिजन तो बनता ही नहीं था ना दुनियावी लिहाज से, अगर वैसे देखा जाए, यानी जो एक मादी लिहाज से अगर देखा जाए, तो मुसलमान तो बहुत कमजोर थे और बहुत ही उनकी कोई ऐसी लड़ने वाली, मुकाबले पे आने वाली कोई उस तरीके से तो उनकी हैसियत नहीं थी। ठीक है। लेकिन हुआ ये कि अल्लाह ताला ने ज़ाहिर है अपनी तरफ से बहुत ज्यादा मदद की। अब इसमें जो काफिर थे ना, उनको अपने एक तो तादाद पे और अपने जंगी साजो सामान पे इतना ज्यादा उनको जोम था, और इतना ज्यादा उनको ये यकीन था कि हमने तो जीतना ही जीतना है, कि वो अपने साथ वहां से ना शराब वगैरह का, इस तरह का सारा बंदोबस्त, जो गुलाम औरतें थी उनको लेकर आए, और अपना उन्होंने जब वहां पे आके पड़ाव भी किया है, तो वहां पे आलम था कि ये लोग बाकायदा वहां पे रात भर उनके शराब और रक्स सरूद की महफिलें वहां पे जमा के बैठे रहे। इतना इनको पक्का यकीन था, और मजाक भी उड़ाते थे कि हमने तो इनको सुबह खत्म कर देना है। और दूसरी तरफ मुसलमानों का ये था कि वो मुसलसल सारी रात उन्होंने इबादत में और दुआओं में गुजारी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि उन्होंने अपने खैमे में इतनी रो के इतनी गिरियाजारी की अल्लाह ताला के सामने, इस तरीके से दुआ की कि दुआ के अल्फाज भी यही थे कि अल्लाह अगर आज ये कि आपने जो हमसे वादा किया, आप हमारी मदद फरमाए, अपना वादा पूरा करें, वरना अगर आज ये मुट्ठी भर जमात खत्म होगी तो फिर तो क़यामत तक कोई तेरी इबादत करने वाला नहीं होगा। और इतना ज्यादा आप रोए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, उन्होंने आपको आके
पकड़ा और कहा कि आप बस कर दें कि आपने तो दुआ करने में इंतहा कर दी। बहुत ज्यादा रोए, बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाए, बाकी मुसलमान भी ज़ाहिर हैं। तो अब आप जरा यानी यहाँ देख लें कि ताकत और जंगी साजो सामान का कंपैरिजन अगर कर लें और उसके साथ जो उनके हालात थे कि वो इतना ज्यादा यानी कॉन्फिडेंट थे कि वो वहां पे शराब और रक्स सरूद की महफिलें, और यहाँ पे मुसलमान सिर्फ अल्लाह ताला पर तवक्कुल कर रहे, अल्लाह ताला पे भरोसा कर रहे, अल्लाह ताला से दुआएं कर रहे और बहुत ज्यादा खालिस नियत के साथ, लेकिन जोश जज्बा इतना था कि बस अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है जहाद का, तो हमने निकलना ही निकलना है और हमने करना ही करना है। तो अब अल्लाह ताला की तरफ से फिर बहुत ज्यादा मदद मुसलमानों को मिली थी। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको इस तरीके से भी बता दूं कि जब ये लोग आए काफिर जो थे, तो इन्होंने पहले ही आके अच्छी पक्की सी जो जमीन थी वहां पे अपना पड़ाव डाल दिया था, और मुसलमान जो हैं उनके लिए कच्ची रेत वाली जो जगह उनको वो मिली थी जहाँ पे मुसलमानों ने आके अपना पड़ाव किया था। और हुआ ये कि अल्लाह ताला की तरफ से ये जो ताईद की बात आ रही है ना कि अल्लाह ताला ने वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्री, कि अल्लाह ताला तो अपनी ताईद से मदद करते हैं, अल्लाह ताला अपनी तरफ से फिर ऐसी ताकत देते हैं कि अल्लाह ताला से मदद होती है। तो एक तो सबसे पहले ये हुआ कि अल्लाह ताला ने हवा इस तरीके से चला दी कि वो मुसलमानों की तरफ से काफरों की तरफ हवा गई, तो यहाँ पे मुसलमानों की तरफ जो कच्ची मिट्टी थी वो सब उड़ के उनकी तरफ चली गई, काफरों की तरफ। ठीक है, वो तो अपनी तरफ से पक्की जमीन लेके बैठे थे। उसके बाद दूसरी मदद अल्लाह ताला ने ये की कि अल्लाह ताला ने बारिश बरसाई। उससे एक तो ये हुआ कि इनको वजू वगैरह के लिए पानी मिल गया, पीने के लिए भी पानी मिल गया, मतलब मुसलमानों के लिए ताजा दम हो गए। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर इनका तो एक वो बेसरो समानी का आलम था, इतने ज्यादा ये तो इक्विप नहीं थे। और ये भी हुआ कि जो काफरों की जो जगह थी जहां पे वो खड़े हुए थे, वहां पे एक फिसलन सी हो गई, वो मट्टी जो उड़ के आई और ऊपर से बारिश हो गई, और यहाँ पे मुसलमानों की तरफ चूंकि जगह नरम थी तो यहाँ पे उनके पाँव जमने लग गए उस बारिश के पानी की वजह से। ठीक है, तो एक तो अल्लाह ताला ने इस तरीके से ये मदद की। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ज़ाहिर अल्लाह ताला ने इस तरीके की जंगी स्ट्रेटजी सिखाई कि कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जंग का वक्त आया तो जब अपने सिपाहियों को खड़ा किया ना, सब मुसलमानों को, तो इस तरीके से खड़ा किया एक ऐसे स्क्वायर सा बना के कि वो हर तरफ से मुसलमान खड़े हुए नजर आ रहे थे, और वो थोड़ी सी तादाद जो थी वो ऐसे लग रही थी कि बहुत ज्यादा तादाद है। ये भी जंगी एक आप कह लें कि हिकमत अमली थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सिखाई, और इस तरीके से उन्होंने किया, वरना तादाद में तो बहुत कम थे। और फिर फैक्चुअली ही ऐसा हुआ कि काफरों को जो है वो मुसलमान अपने से ज्यादा, यानी वो 1000 थे तो उनको अपने से ज्यादा 2000 आप समझ लें कि उनको नजर आ रहे थे। ठीक है, और या जिसका मैंने आपको कहा कि मुख्तलिफ तफासीर इसकी की गई है कि मुसलमानों के हवाले से अगर आप लें कि उनको वो अपने से दुगने नजर आ रहे थे, यानी खुद वो 313 की तादाद में तो उसके डबल नजर आ रहे थे, यानी एक्चुअल 1000 से कम नजर आ रहे थे, बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहे थे। ठीक है, जिस हवाले से भी आप इसको ले लें। और ये भी कि काफरों को अपनी तादाद जो है वो अपने आप को यानी बहुत ज्यादा देख रहे थे और अपने ऊपर बहुत ज्यादा जोम कर रहे थे, ये भी इसकी वो एक की गई है तफसीर। और इसमें ये भी है कि ये जो है ना रयल आइन, वाकई आंख से नजर आ रहे थे, यानी कोई नजर का धोखा नहीं था, वाकई ऐसे नजर आ रहे थे। अल्लाह ताला ने यानी मुसलमानों को ये दिखाया कि काफिर कम तादाद में है ताकि उनको जो है एक हिम्मत मिले। काफरों के ऊपर रोब डालने के लिए मुसलमान जो हैं वो उनको बहुत ज्यादा नजर आए, क्योंकि जंगे बदर में ये आगे था ना, आगे जब सूरत अल-अनफाल आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आप ये डिटेल पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने बाकायदा फरिश्ते भेज के भी मदद की थी जंगे बदर में। आई एम श्योर आप सबको पता होगा, बहुत ज्यादा फरिश्ते आए थे अल्लाह ताला की तरफ से मदद करने के लिए। तो वो भी शायद उनको नजर आ रहे थे इस तरह से कि जो उनको उनकी तादाद शायद नहीं, मतलब यकीनन नजर आ रहे थे। और बल्कि ये भी आता है डिटेल्स में कि जो काफिर थे ना उनकी मतलब गर्दन कट जाती थी, बाजू टांग कट जाते थे और पता नहीं चलता था कि किसने काटे। जबकि ज़ाहिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ताला ने ये खुशखबरी दे दी थी कि मैं फरिश्तों के जरिए तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, और फिर वो पूरी फौज जो है वो आई फरिश्तों की, उन्होंने आके बाकायदा मदद की। तो अल्लाह ताला की तरफ से तायद हुई थी, बाकायदा मदद की गई थी मुसलमानों की बहुत से इस तरीके के चीजों के साथ। फिर ये भी हुआ आता है एक
आई थिंक सूरत अल-अनफाल में ये कि अल्लाह ताला ने थोड़ी देर के लिए ना एक सुकून की नींद, एक ऊँग सी तारी की थी उनके ऊपर, मुसलमानों पे, जिसकी वजह से एकदम वो फ्रेश हो गए थे, तरोताज़ा हो गए थे और एकदम हैं. सॉरी अबाउट दैट. अच्छा, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए भी मदद की और बाकायदा फरिश्तों की फौज आई जिन्होंने आके मुसलमानों के साथ, मुसलमानों के हक में काफिरों के साथ जंग की, और उसमें फिर इस तरीके से भी काफिर जो है उनको तादाद भी ज्यादा नजर आ रही थी, और वो जो है उनके ऊपर ज़ाहिर है साइकोलॉजिकली भी उसका असर हुआ, और वैसे भी मतलब अल्लाह ताला की तरफ से बाकायदा ये मदद मिली. ठीक है. और दूसरा मैं आपको बता रही थी कि एक ऊँग भी जो है मैदान जंग में थोड़ी सी देर के लिए मुसलमानों के ऊपर तारी की गई थी, जिससे वो बहुत फ्रेश हो गए थे. आगे सूरत अल-अनफाल में भी आप डिटेल्स पढ़ेंगे. ठीक है. तो ये वो सब अल्लाह ताला की ताईद की निशानियां हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से बिलखुसूस मदद हुई, अल्लाह ताला की तरफ से ताईद मुसलमानों को मिली. हालांकि यानी ये कोई छोटी बात नहीं थी कि इतनी थोड़ी तादाद और आगे 3 गुना ज्यादा तादाद. आप देखिए कहाँ 313 और कहाँ 1000. वो पे बाकी भी मैंने आपको कंपैरिजन बता दिया जंगी साजो सामान का भी कि वो भी किस तरीके से था. तो इससे पहले अगर आपको याद हो, जब तालूत और जालूत का वाकया हुआ था, मैंने उसमें भी आपको बताया था कि तालूत के लश्कर में भी यही एग्जैक्ट तादाद बताई जाती है. 313 ही लोग थे जिन्होंने उस नहर से पानी नहीं पिया था, जिन्होंने वाकई अल्लाह ताला की बात मानी थी और वो सही तरीके से फिर उन्होंने आगे जाके वो जंग की थी, और अल्लाह ताला की ताईद उनको भी हासिल हुई थी. मैंने आपको बताया था कि बनी इसराइल की जो है वो ग़ज़वा बदर वो था. तो बात यह है कि अल्लाह ताला की तरफ से इस तरीके की ताईद होती है, अल्लाह ताला की तरफ से इस तरीके की मदद आती है. ये सिर्फ ये जो इतनी स्पेशल ताईद है, यानी सिर्फ असहाबे बदर के लिए तो थी ही थी, लेकिन उससे पहले या उसके बाद भी हो सकती है अगर ये सारी चीजें मौजूद हों, यानी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो रही कि नियत खालिस अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला पे बेतहाशा तवक्कुल, अल्लाह ताला की राह में निकलना फी सबीलिल्लाह, और मतलब फिर कोई अपनी जान या माल या उसकी परवाह नहीं करना, सब यानी अल्लाह ताला के लिए करना है खालिस नियत के साथ, और अल्लाह पे इंतहा का तवक्कुल कि अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह ताला की बात मानी. यानी ये सारी जब कंडीशंस पूरी हों तो चाहे बज़ाहिर असबाब नजर ना भी आ रही हों, लेकिन अल्लाह ताला की मदद आज भी हो सकती है, किसी दौर में भी हो सकती है जब ये शराइत पूरी हो. जो एक किसी शायर का है ना शेर, क़ज़ाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी. सॉरी मेरी इसमें आपको आई ऑलवेज टेल यू कि मुझसे शेर नहीं मुझसे सही याद रहते, बहरहाल शायद यही शेर है. क़ज़ाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी. सुना होगा आपने ये शेर जिसका भी है. तो यानी गर्दों जो है ना, ये फारसी में आसमान को कहते हैं कि वो फ़ज़ाए बदर अगर पैदा हो आज भी ये काम हो सकता है. यानी अल्लाह ताला के लिए फरिश्ते उतार के मदद करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मसला ये है कि आज वो यानी वो जज्बा ईमानी नहीं है, क्योंकि ईमान ही उस तरह का मजबूत नहीं है. ठीक है ना. तो बस कमी जो है ना वो ईमान की है, और उस जज्बे की है, और उस इखलास की कमी है, उस जोश की कमी है, और उस इताअत की कमी है. वरना अगर आज वो हो तो वही फ़ज़ाए बदर अगर हो जाए तो अल्लाह ताला की मदद आज भी आएगी मुसलमानों के लिए. ये बड़ा शेर जो है ना बड़ी सही यानी इस चीज की अक्कासी करता है कि ये अल्लाह ताला ने जो मदद उस वक़्त की थी मुसलमानों की जंगे बदर में, वो तो आज भी हो सकती है. लेकिन बात वो ये कि कोई अब तो ना वो जाहिर बात है ना उस तरह का ईमान रहा है, ना उस तरह का जज्बा रहा है, ना वो मुसलमान रहे हैं खालिस नियत वाले और खालिस ईमान वाले. तो बात वो ये कि उन जैसा जज्बा, वो इस्तिकामत, वो
صحیح خالص نیتیں وہ پیدا کریں اگر ہم اپنے اندر، تو اللہ تعالیٰ کی مدد تو ہر دور میں ہو سکتی، چاہے تعداد کم ہے یا چاہے جو طاقت ہے یا قوت ہے کسی لحاظ سے بھی وہ کم ہے، لیکن اگر یہ سب چیزیں شرائط پوری ہوں تو پھر تو یعنی اللہ کی مدد آ سکتی ہے بالکل، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ کے نا واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ایکسپلین کر دی جو میں نے بھی وہ شعر پڑھ کے آپ کو بتایا نا، کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے ساتھ تائید کر سکتے ہیں جس کی وہ چاہیں، جو ان شرائط پہ پورا اترے گا، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس خالص نیت کے ساتھ نکلے گا، اللہ کی مدد اس کو ملے گی۔ ہم اپنی نیتوں کو چیک کریں، ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں، اور ساتھ ایفرٹ، یعنی اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی کی تھی اور ساتھ اسٹریٹجی بھی تھی، یعنی جو جنگی اسٹریٹجیز تھیں وہ بھی تھیں، اور ساتھ ساتھ توکل اور دعا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ضروری ہوتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان صرف کہے کہ بس یہ ٹھیک ہے اللہ کی مدد آ جائے گی اور خود ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا رہے، ایسا نہیں ہے، کچھ کرنا بھی پڑتا ہے، یعنی عمل بھی کرنا پڑتا ہے، ایمان بھی ہو اور ساتھ ساتھ عمل بھی ہو، یہ دونوں چیزیں چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ جس کی بھی چاہے مدد کر سکتے ہیں، جو بھی اللہ کے اوپر خالص ایمان رکھتے گا، اللہ کی راہ میں نکلے گا، اللہ کی دین کی مدد کے لیے کسی حوالے سے بھی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مدد ضرور ملے گی، ٹھیک ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ، اس میں البتہ عبرت ہے، یعنی اس سے سبق پکڑا جا سکتا ہے، اس میں نشانی ہے، لیکن کن کے لیے ہے؟ اُولی الابصار کے لیے ہے، بصیرت والوں کے لیے ہے، اہل نظر کے لیے ہے، یعنی جو صحیح نظر سے دیکھتے ہیں، جن کے اندر یہ حکمت ہے کہ جو یعنی گہرائی میں یا معاملے کی تہ میں جا کے دیکھتے ہیں کہ اصل وجہ جو ہے وہ کیا ہے، یعنی آج اگر یہ حالات نہیں ہیں یا مسلمان جو ہیں وہ ہر جگہ پہ پکڑ کا شکار ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی سزا کا شکار ہیں، تو ان کی نظر جاتی ہے اس چیز کے اوپر کہ کیا کمی ہے، اور اگر وہ کمی پوری ہو جائے تو آج بھی اللہ تعالیٰ کی مدد آ سکتی ہے۔ لیکن یہ بات جو ہے نا سمجھ انہی کو ہی آتی ہے جو اہل نظر ہیں، جو بصیرت رکھتے ہیں، جو یہ فہم رکھتے ہیں، جو یہ سمجھ رکھتے ہیں، اور یہ بصیرت جو ہے یہ علم سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ تو جب تک انسان یہ قرآن کا علم نہیں حاصل کرتا نا، تب تک اس میں یہ بصیرت آ نہیں سکتی، کیونکہ تب تک اس کو نہ تو دنیا کی حقیقت پتہ چلتی ہے، اور تب تک نہ ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس کی نظر آخرت پر ہوتی ہے، نہ اس کا وہ توکل مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ بھروسہ بھی نہیں ہوتا، وہ ایمان جو ہے اس حد تک خالص نہیں ہوتا نا۔ تو یعنی ان واقعات پر غور وہی کرتے ہیں جو اہل بصیرت ہوتے ہیں کہ اتنی سی تعداد کا غالب آنا بغیر اللہ کی تائید کے ممکن نہیں ہے، اور آج اگر اللہ کی یہ تائید نہیں ہے اور مسلمانوں کے جو یہ حالات امت مسلمہ کے ہو چکے ہیں ہر جگہ، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جب تک یہ قرآن کا علم اور فہم نہیں ہوگا تو یہ حکمت، یہ بصیرت آ نہیں سکتی، تو جب یہ علم نہیں ہوگا تو نہ یہ حکمت اور بصیرت ہوگی، تو پھر عبرت بھی نہیں پکڑیں گے۔ تو یہ حقیقت بھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی، ٹھیک ہے جی۔ تو ٹائم ہمارا ہو گیا ہے، ہم اس کو یہیں تک رکھتے ہیں۔ اچھا نہیں، یہ جو شعر ہے نا فضائے بدر، یہ اقبال کا نہیں ہے، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اقبال کا ہے، ساتھ ہی میسج آنے لگ جاتے ہیں، یہ اقبال کا نہیں ہے جی، یہ کسی کو پتہ ہے کس کا ہے؟ میرے خیال میں یہ شاید ظفر علی خان، مولانا ظفر علی خان پراپرلی ان کا شعر ہے، میں بھی رونگ، لیکن اقبال کا نہیں ہے۔ بہرحال باقی اگلی آیت کی بہت زیادہ ڈیٹیلز ہیں، بہت اچھی آیت ہے، کل کی کلاس مس نہیں کریں۔ ٹائم آپ کا ہو گیا ہے تو ابھی ہم تلاوت پلے ہو سکتی ہے جی، ہم تلاوت سن لیں اس کی۔ جی مجھے 1 منٹ چاہیے کرتی۔ جی 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 شروع۔ والله شديد العقاب كدأب آل فرعون من قبلهم
كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله ہلو جی جی آ رہی آواز؟ آواز شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. دعا کریے.